Hello students, today we are going to see some part of simple, compound and complex in which first of all we would like to see about simple sentence. Actually, what is simple sentence? We have seen in the previous video, simple sentence, it's a solitary clause. Clause is a small unit and sentence consists of clauses. Clauses may consist of sentences. Now, very important thing that you must notice, number of verb equal to number of clauses. In simple sentence, it will give us a complete idea, a complete thought, and we may consider that it has only one verb. Simple sentence has only one verb. Now, rule number one, a simple sentence has only one finite verb. What is finite and infinite? फाइनाइट मतलब के जो प्योर जेन्युइन वर्ब है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जैसे कि ड्राइव, लाइक, लव, ड्रिंक, ये सब. तो इन्फिनिटिव आप लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग वर्ब के आगे टू 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 लगाते हैं ना, तो इट इज कंसिडर्ड बी इन्फिनिटिव. वो जेन्युइन या फाइनाइट वर्ब नहीं है. मतलब सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. फॉर मेकिंग ए सिंपल सेंटेंस व्हाट वी आर यूजिंग, phrases like in spite of, despite of, owing to, because of, on having, on doing, etc. can be used. So when we are making simple sentence out of compound or complex, when we convert from compound and complex having two or more than two kind of verbs. When two verbs are there, we have to convert one of them into genuine infinitive और genuine phrases, और you can say genuine gerund. इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सिंपल, बिकॉज सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ब. So for making a simple sentence, what we are using apart from genuine finite verb, phrases like in spite of, despite of, owing to, because of, on having, on doing, etc. Now what you have to notice about, note that gerunds and infinitive can also be used to make a simple sentence. सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग gerund और infinitive का हेल्प ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम genuine finite verb, you can use one finite verb and rest of them may be gerund or participle or infinitive. Now gerunds, what? Gerunds or participle, they are the words that end with ing. आप लोगों ने सुना होगा, eating, ड्रिंकिंग, कमिंग, एक्सेट्रा, राइट. उसको वो सबको हम लोग या तो पार्टिसिपल बोलते हैं या तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जेरंड बोलते हैं. वेरएज हम लोग इसको इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनिटिव दे आर लाइक वर्ब फॉर्म बट दे आर नॉट जेन्युइन वर्ब. दे आर यूज्ड विद टू, लाइक टू ईट, टू ड्रिंक, टू कम, टू गो, टू ड्राइव. टू आगे लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका वर्ब जो हो, वो बन जाएगा क्या? जेन्युइन इंफिनिटिव. नाउ gerunds and infinitive are not finite or genuine verb, but they do the work of verb. They are not the verb, but they do the work of verb. अब जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं जो कई बच्चों को इनिशियली कंफ्यूज करता है. जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि भाई कौन सा, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर, तो ऑन हियरिंग द बेल आई ओपन द डोर. तो कई लोग हियरिंग को भी वर्ब मानते हैं, बट हियरिंग इज व्हाट? gerund, not verb. Mind well, hearing is not verb, it is not a genuine verb, it is a gerund. और आपका genuine verb यहाँ पे कौन सा है? open. तो एक ही वर्ब हो, राइट, उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस. दूसरा एग्जांपल देखो, इंफिनिटिव वाला है, he works hard to get 90%. तो यहाँ पे अगर आपको कोई लोगों को ऐसा है, हम पूछते हैं तो टू गेट, बट टू गेट इज नॉट ए फाइनाइट वर्ब, इट इज इन्फिनिटिव, जो आगे आपको समझाया, टू ड्रिंक, टू कम, टू ईट, टू वर्क, राइट, टू डू, राइट, टू गेट, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है. तो आपका यहाँ पे फाइनाइट वर्ब कौन सा है? वर्क्स. तो एक ही वर्ब है, he works hard to get 90%, right? Hence we can say that this is a genuine simple sentence
consisting of only one finite verb. It may possess gerund. It may possess participle, that is gerund. It may possess infinitive, but it will possess only one and one finite verb. यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो number of verb equal to number of clauses. Simple sentence में solitary clause means solitary verb. और complex और compound में more than one verb. That's why they have got more than one clauses. Now compound sentence. It consists of two or more coordinate clauses joined by coordinating conjunction such as and, but, yet, so, still, or, for, either or, neither nor, not only dash 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 but also therefore, and so, and yet, as well as otherwise, etc. इतने याद रखो काफी है. बाकी के सभी conjunction जो है that belongs to complex sentence. नाउ कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि पहला क्लॉज है वो भी इंडिपेंडेंट है और दूसरा क्लॉज भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही है. Thus, our two independent clause joined by coordinating conjunction, that what I mentioned, and, but, yet, so, still, or, for, either or, neither nor, not only but also, therefore, and so, and yet, as well as, otherwise, etc. ये सब कंजंक्शन है जिससे दो क्लॉजेस ज्वाइंट होते हैं. सिंपल सेंटेंस में ऐसे कोई भी कंजंक्शन होते नहीं है. कॉम्प्लेक्स में होंगे. इसके अलावा बाकी के सभी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे. यहाँ पे हम लोग इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, राइट, उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आता, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज यहाँ नहीं आता. दैट मीन्स व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर coordinate clauses joined by coordinating conjunction, that what I mentioned. Now that means it has got two clauses or more than two clauses. Sometimes it has got comma, sometimes it has got semicolon, sometimes it has got right and this kind of sentences. So it is very easy to identify the compound sentence. अब कुछ यहाँ पे 5, 6, 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं. She came, यहाँ पे वर्ब भी है, एक सेंटेंस हो गया. And you went, ये देखो ये दूसरा वर्ब आ गया. But I simply remained there, remain भी है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीन तीन है. She came and you went, but I simply remained there. बराबर. Pay your dues, pay आपका वर्ब है यहाँ पे pay. और leave our party, यहाँ का वर्ब कौन सा है? leave. Leave our party एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. Pay your dues ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. बीच में कनेक्टिव कौन सा है? और. तो ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस. आई वॉज नॉट ओनली इन्वाइटेड, यहाँ पे देखो वॉज इन्वाइटेड एक वर्ब है, बट ऑल्सो मेड द चीफ गेस्ट. दूसरे सेंटेंस में कौन सा वर्ब है? मेड. बराबर. तो वॉज इन्वाइटेड एक वर्ब है, एक क्लॉज हुआ आपका. पहला क्लॉज कौन सा हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हुआ? आई वॉज नॉट ओनली इन्वाइटेड, तो वॉज इन्वाइटेड पहला क्लॉज, बट के बाद का दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेड वर्ब है. यहाँ पे देखो इधर आई एम रॉन्ग, तो आपका यहाँ पे वर्ब है एम, और यू आर राइट. सेकंड सेंटेंस में सेकंड क्लॉज में आर वर्ब हो गया. बराबर. नेक्स्ट वन में देखो सी विल इल और राइट सॉरी सो सी वेंट बैक टू होम. अगर वो राइट अगर इल हुई तो सी वेंट बैक टू होम. अगर वो बीमार पड़ेगी तो घर पे चली जाएगी. राइट. ऐसा कुछ सेंटेंसेस है. इज दैट क्लियर? कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल पनिश यू. आप शांत रहो नहींतर अदरवाइज, ये भी एक कनेक्टिव है, आई विल पनिश यू. और लास्ट में ही इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट होने के बावजूद फेल हुआ. यहाँ पे कौन सा वर्ब है? फेल. और यहाँ पे कौन सा वर्ब है? इज. ही इज इंटेलिजेंट yet fail. बराबर. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जो हम लोगों को पता चलता है कि ये कौन सा आपका क्लॉज बता रहा है. कंपाउंड सेंटेंस है. इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज and having some coordinating conjunction. That what I mentioned. Some of the example you can easily identify which kind of sentence it is. So it is compound sentence, right? जैसा हमने यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे. राइट. अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन से सेंटेंसेस है.
यहाँ पे सी वॉज इल आएगा, सी वॉज इल सो सी वेंट बैक टू होम, राइट। सी वॉज इल सो सी वेंट बैक टू होम, मतलब कि थोड़ा करेक्शन कर लेना, राइट, विल लिख दिया था टी के साथ। तो आपके 7 सेंटेंसेस है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। अपना सिंपल और कंपाउंड का खत्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट कॉम्प्लेक्स। Now some complex sentences. First of all, what is complex sentence? It is one which consists of 2 or more clauses. Likewise compound, but now what is unlikewise compound? Out of which one is the main clause, independent clause या तो principal clause, and the rest मतलब के बाकी के they are subordinate clauses. Subordinate clauses में मैंने आपको बताए थे, right, last video में, noun clause, adjective clause as well as adverb clause, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो one main clause and other subordinate clauses, they are joined by which conjunction or which connectives? Subordinate conjunction. What are they? That, which, who, whom, whose, where, when, why, how, since, because, as, before, after। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, वहां पे भी सो है कोऑर्डिनेट में, राइट, कंपाउंड में, बट ये सो डैश 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 दैट साथ में है। दो, ऑल्दो लिखा नहीं है, इफ, अनलेस, लेस्ट, देन, एक्सेट्रा, ये बहुत सारे कंजंक्शन है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ कनेक्टिव्स और कंजंक्शन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बोलते हैं। नाउ सम एग्जांपल दैट विल गिव यू आइडिया हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे एक वर्ब है, वी नो, ही विल कीप हिज वर्ड, बीच में कनेक्टिव कौन सा है? दैट। अगर दैट के बदले कोई दूसरा कनेक्टिव होता, एंड यट, बट, एक्चुअली, तो हम लोग उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? कंपाउंड। ही इज द लीडर, इज वर्ब आ गया, एक वर्ब यहाँ पे है, एक वर्ब कहाँ पे है? वी ऑल ट्रस्ट, ये आपका दूसरा वर्ब, और बीच में कनेक्टिव कौन सा है? होम। यहाँ पे देखो मेन क्लॉज कौन सा है? ही मिस द बस, ये मेन क्लॉज है, बट दूसरा कहां से स्टार्ट होता है? दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है, दो ही रैन। दूसरे क्लॉज में वर्ब आपका रैन है, बट इसका कनेक्टिव कौन सा है? दो, बराबर। दिस इज द हाउस, ये मेन क्लॉज है, दिस इज द हाउस, जिसमें वर्ब कौन सा है? इज। आपका कनेक्टिव कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट। बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स आपका वर्ब है, सेकंड क्लॉज का वर्ब बिलोंग्स टू है। यहाँ पे भी देखो, इफ यू डोंट स्पेयर द रॉड, देखो जहां से स्टार्ट हुआ वो ही प्रिंसिपल या तो मेन क्लॉज है, वो गलत। जहां पे कनेक्टिव नहीं है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जहां पे भी कनेक्टिव नहीं है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे देखो ये कनेक्टिव नहीं है, ये मेन क्लॉज। यहाँ पे देखो ये कनेक्टिव नहीं है, मेन क्लॉज। यहाँ कनेक्टिव से स्टार्ट हुआ तो ये मेन क्लॉज नहीं हुआ, मेन क्लॉज कहां से हुआ? ही मिस्ड द बस, बराबर। यहाँ पे भी इफ यू डोंट स्पेयर द रॉड, ये मेन क्लॉज नहीं है। मेन क्लॉज कौन सा है? योर चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड, तो विल बी स्पॉइल्ड ये आपका वर्ब है, और यहाँ पे इफ यू, ये इफ कनेक्टिव है, आपने यहाँ पे देखा, इफ इज कनेक्टिव। इफ यू डोंट स्पेयर द रॉड, राइट, आपकी ये प्रोवर्ब है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। व्हेन लिंकन, अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं, वाज अ बॉय, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे भी देखो ये कनेक्टिव पहले आया, मतलब कि ये जो है आपका कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट। आपका मेन क्लॉज इज लाइंग ओवर हियर, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, he did not go to school, he मतलब कौन? लिंकन। when Lincoln was a boy, जब वो छोटा था तब वो नहीं जाता था, बराबर। तो ये आपकी एक पहचान है, सिंपल सेंटेंस, ओनली वन सॉलिडरी क्लॉज, नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ क्लॉजेस, यू बेटर अंडरस्टैंड दैट, नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब होता है, बट वहां पे सबऑर्डिनेट कनेक्टिव्स या तो कंजंक्शन नहीं होता है, वहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक मेन क्लॉज होता है, या तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और बाकी के, राइट, मोर देन वन भी हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ देम आर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट में नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। तो ये आपका तीनों का डिफरेंशिएशन हो गया। लास्ट टॉपिक, इफ यू कैन सी सम इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस। He was not only a scholar but was also a great poet.
नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपका यहाँ पे वॉज और यहाँ पे भी वॉज, मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि नॉट ओनली बट ये आपका कौन सा कनेक्टिव लगता है, कोऑर्डिनेटिंग। इसका अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर। एंड आया तो ऐसा मत समझ जाना, एंड आया मतलब ऐसा मत समझ जाना कि वो कंपाउंड है, यहाँ पे वर्ब एक ही है, देखो वॉज, बराबर। जैसे संकेत एंड संजय, बोथ ऑफ देम आर टीचिंग, आर टीचिंग वर्ब है, बट संकेत है और संजय में दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, वो एंड यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करने के लिए रखा है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट विन ए प्राइज, ये आपका सो दैट मतलब कि कौन सा क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स, बराबर। ये एक वर्ब और ये माइट विन, तो यहाँ पे ही वर्कड हार्ड टू विन ए प्राइज, देखो ये आपका वर्ब हार्ड जो है, राइट, आपका वर्ब है, जेन्युइन वर्ब, पर ये टू विन इंफिनिटिव हुआ, अभी अभी आपको रूल समझाया। डोंट ट्रीट मी लाइक ए चाइल्ड, एक ही वर्ब है, राइट, ट्रीट। डोंट ट्रीट मी एज इफ, ये कनेक्टिव है, एज इफ आई वर अ चाइल्ड। अब यहाँ पे एक इंग्लिश का एक पुराना रूल है, जब भी आई वर अ चाइल्ड, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर, जो चीज हम है नहीं पर इसके बारे में हम लोग गेस करते हैं ना, तब हम लोग आई के साथ वॉज के बदले वर लगाते हैं। वो खास याद रखना, जब भी एज इफ आए, ही ओन्स, एज इफ ही वर हैविंग हिज ओन हाउस, बराबर। तो ऐसा एज इफ के साथ जब भी आए तो आई के साथ वॉज के बदले क्या लगेगा, वर, वो बराबर ध्यान रखना। इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर एन एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसा लगाते हैं तो आई के साथ वर लगता है। वी मस्ट ईट टू लिव, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल। इसको कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, और आया कनेक्टिव, और यहाँ पे कैन नॉट और यहाँ पे मस्ट ईट। ही बॉट एन ओल्ड हाउस, ये भी कौन सा है, सिंपल सेंटेंस, एक ही वर्ब, बॉट। ही बॉट ए हाउस, यहाँ पे कनेक्टिव कौन सा लगा, कॉम्प्लेक्स का लगा, विच वॉज ओल्ड। आप ऐसे टर्न कर सकते हैं, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब देखो एक में से तीन कैसे बनते हैं। बीइंग फ्यूरियस आई साउटेड, डेली का होता है, तो आई बिकेम फ्यूरियस, बिकेम वर्ब आ गया, आपने डाल दिया, या तो आई वॉज फ्यूरियस ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड लगाया मतलब कि कौन सा, कंपाउंड, आई साउटेड, साउटेड वर्ब, became furious verb, right, and connective। बट अगर इसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो when I became furious I shouted, यहाँ कॉमा कर देना, राइट। That's how आप लोग ऐसे इंटरकनेक्शन कर सकते हैं। Is that clear? Lastly, two sentences. He stood in the middle of the field and said to his son. Stood and said, ये दो वर्ब है, मतलब ये कंपाउंड है। अगर उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो स्टूड जो वर्ब है उसका जिरंड या तो पार्टिसिपल बना दिया, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, यहां तक ठीक, एंड कनेक्टिव निकाल दिया, और बाकी का एक अपना सब्जेक्ट लेके ही सेड टू हिज सन, ये बन गया आपका सिंपल। अगर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ कनेक्टिव ढूंढना है। व्हेन ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वर्ब में कोई चीज नहीं, एंड निकाल दो, आगे व्हेन लगा दिया, ही सेड टू हिज सन, वेरी सिंपल। दूसरा देखो, he placed a stamp on the letter and drop it into the mail box, यहाँ पे placed और वहां पे drop, दो वर्ब हो गए, मतलब के कंपाउंड तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिव बीच में कौन सा है, एंड। अब इसको सिंपल बनाना है तो एक वर्ब रहने देंगे, कौन सा, ड्रॉप वाला, बराबर। और ये कौन सा है, प्लेस का हम लोग जिरंड बना देके पार्टिसिपल बना देते, प्लेसिंग ए स्टैम्प ऑन द लेटर ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और अगर इसको हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वेरी सिंपल, when लगा दिया और and हटा दिया, when he placed a stamp on the letter, comma, he dropped it into the mailbox, comma वगैरह लगाना जरूरी है। These are the rules you have to apply, and rest of the thing you must practice from camp.